Okay, good morning, children. Yes, beta, I am audible to you. No. Okay, right, children. Let us start. And before that, I would like to take your attendance first, children. Right? Beta, come with your proper names. Okay? Who is this issueanand.com? ठीक है बेटा, तो come with your names, not with your IDs like this. ठीक है? Then Arav Sharma, Arpit, Kanishka, Khushi Tyagi, Mehak, Manvi, Neil, Parmeet. This is Prachi Chaudhary. And what is this number? इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी until and unless you will change it. Riddhi, Sanjana Chaudhary, Sarita Singhal, and Pradeep Singhal. Then Surinder Sethi, Rashmi Suri, Tanishq, Uday Singh Sirohi, Ujjwal Chauhan, Uzaif Ansari, Varun, and Yashvika Tiwari. Right, children? And today I am going to give your answer sheets as well as the marks. But children, I found that many students have submitted their papers more than one time. Okay, so I'll provide you the marks which you have submitted first. Okay, because time is there, time is mentioned. Okay, and accordingly I'm going to give marks according to your the paper which you have submitted at number 1. Okay, Chali beta. Let us continue. We have completed up to this controlling workers. Now we are going to start with the next heading of the theme 3, social hierarchies. Okay. Yes, children. Hierarchies, you understand what is the meaning of hierarchies? Yes, but anyone of you can tell me this? Can any of you tell me? What do you understand by the word hierarchy? Ma'am, transfer of powers from one generation to the next. Not exactly like that, है ना? That is तो inheritance हो गया वो तो आपका, है ना बेटा? है ना? Means आपका एक तरीके से what are your ranks, है ना? What are your position, है ना? In a state, in an institution, right? Who is at the As topmost, then who comes to the next like that, and who is at the ma'am, lower round. हाँ बेटा. it is a system in which the हाँ. powers of one person transferred to the child to his child हाँ. automatically. हाँ, that is right कि powers are transferred. That is another fact, है ना? कि वो जो आपकी powers हैं, they are in a like that कि जो powers हैं वो आपके hereditary होती हैं, है ना? कि सपोज समवन बिलोंग्स टू एरिस्टोक्रेसी तो उसकी फैमिली भी एरिस्टोक्रेसी को ही बिलोंग करेगी. इफ समवन बिलोंग्स टू क्लर्जी तो वो क्लर्जी को ही बिलोंग करेगी, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है. राइट? ओके, बट दिस इज नॉट सोशल हायरार्की, है ना? सोशल हायरार्की इज, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द स्कूल. जैसे हमारे यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट. हाँ, स्ट्रक्चर यू कैन से, है ना? सोशल है जैसे अब आप देखिए हमारे यहाँ पर स्कूल का हम लेकर के चलते हैं. सोशल हायरार्की क्या है? Management is as the topmost, okay? Then principal ma'am, then vice principal sir, then coordinators, then teachers, and then the other classes. Do you understand it now? Means their level, their rank, their position, you can say. But is it clear to you now? Yes, children. Yes, ma'am. Okay. है ना? वही चीजें इनहेरिट हो जाती हैं थी पुराने समय में, है ना? अब तो एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड मेरिट.
right? Now these positions are not inherited, okay, except in case of the management की अगर भाई फादर हैं तो उनके बाद उनका बेटा वो लुक आफ्टर करेगा मैनेजमेंट को, है ना, बट जो प्रिंसिपल की पोस्ट है दैट इज नॉट इनहेरिटेड, है ना, दैट विल बी नॉट गिवन टू देयर चिल्ड्रन, दैट डिपेंड्स अपॉन द personal qualification and the merit of the person, right? Okay, now we will see the social hierarchies or the social structures of the empire of the Roman Empire. Of the Roman Empire, Tacitus, he was an historian. He had described the leading social groups of the early empire as follows. Number one is your senators. Okay, they were at the highest post. You can say highest position. Then leading members of the equestrian class. Equestrians were your knights or the horsemen, है ना, जो आपके आर्मी से रिलेटेड होते थे. Then the respectable section of the people, those who attach to the great houses, and then the unkempt lower classes, who he tells were addicted to the circus and the theatrical displays, and finally your slaves. This is the social hierarchy as described by the Tacitus. Okay, in the early 3rd century, when the Senate numbered roughly 1000 approximately, okay, and we have already studied some of them belong to the provincial estates and some of them belong to the Italian families. So half of them belong to the Italian families, and by the late empire, है ना, when it was started in the 4th century, which start with the reign of Constantine I in the early part of the 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus, senators and the equites, had merged into a unified and expanded aristocracy. ओके, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, फर्स्ट टू ग्रुप्स एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट चिल्ड्रन? एंड इन जो आपका ये फर्स्ट ग्रुप बना अब नाउ, इसमें से हाफ ऑफ द पर्सन्स बिलोंग टू द अफ्रीकन एंड ईस्टर्न ओरिजिन, ठीक है. This late Roman aristocracy was enormously wealthy. ठीक है, these people were very rich, no doubt, but they were not as powerful as the military elites. ठीक है, जो आर्मी या मिलिट्री के लोग थे, है ना, तो ये उनके जितने पावरफुल नहीं थे, राइट? पैसा इनके पास उनसे ज्यादा था, पर पावर इनकी उनसे कम थी. एंड दीज मिलिट्री elites came entirely from the non aristocratic backgrounds. ठीक है, ये सेनेटर या एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते. The middle class now consisted of the considerable mass of the persons connected with the imperial service in the bureaucracy and army. और मिडिल क्लास में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते थे, आर्मी में काम करते थे, वो लोग थे. And also it included the prosperous merchants and the farmers, ठीक है, mainly from the eastern provinces. Okay, Tacitus described this respectable middle class as the clients of the great senatorial houses. ठीक है, इन्होंने इसको, हाँ, जो आपकी ये मिडिल क्लास थी इसको कहा कि they were the clients of the senatorial houses because they were chiefly government service, because it was chiefly government service and the dependence on the state, ठीक है, that sustained many of these families. ठीक है, क्योंकि ये families mainly या तो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंड करती थी, ठीक है, या किंगडम या स्टेट जो चीजें उनको प्रोवाइड करता था उसके ऊपर डिपेंड करती थी. Below them were the vast masses of the lower classes, collectively known as humiliors. ठीक है, और इसमें आपके रूरल पीपल आते थे मेनली, विच मेनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन ए लार्ज स्टेट्स. ठीक है, जो कि अपना बड़े बड़े स्टेट्स पर काम करते थे.
राइट। लेबर फोर्स मेनली आपकी रूरल लेबर फोर्स आती थी, ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी फील्ड्स में काम करती थी, एंड द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल एंड द माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, okay, labor class you can say. And then migrant workers who supplied much of the labor force for the grain and olive harvest and for the building industry, self-employed artisans who, it was said, were better than fed than wage laborers, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लास्ट क्लास थी आपकी ह्यूमिलर्स की, इसमें आपके मेनली जो आपकी लेबर क्लास थी वो आती थी, वेदर दे आर बिलोंग टू द रूरल एरियाज जहाँ पर वो फील्ड में काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, माइनिंग वर्कर्स इन द माइनिंग फील्ड्स, ठीक है, या आपकी जैसे लेबर कमिंग फॉर द एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग, है ना, फॉर ग्रेन, ऑलिव हार्वेस्ट के टाइम पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, या आपके कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस होते थे। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस मीन्स जो अपना कुछ क्राफ्ट का काम करते थे, है ना, जैसे रोप मेकिंग हो गया, गार्लैंड मेकिंग हो गया, इस तरीके के जो काम करते थे, बास्केट वीविंग, मेकिंग ऑफ द क्लॉथ, तो वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे। जैसे ये लेबर जो है आपका फील्ड्स में काम करती थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करती थी, इंडस्ट्रीज में काम करती थी, बट देवर दिस आपके जो आर्टिसंस या क्राफ्ट पर्सन है, देवर सेल्फ एम्प्लॉयड, okay, and it was said these artisans were better fed than the wage laborers, ठीक है, इनकी इनकम उनसे अच्छी होती थी, and a large mass of casual laborers, especially in the big cities, and of course the many thousands of the slaves that were still found all over the Western Empire in the particular, ठीक है, ये सब आपके ह्यूमिलियर्स का पार्ट थे, और द लास्ट कैटेगरी जो आपकी इनकी थी उसका पार्ट बनते थे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द टेसिटस की व्हाट ऑल क्लासेस वर देयर, ठीक है, कि वहां पर डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सोशल हायरार्कीज कौन सी थी, बट इन जनरल इफ विल सी, तो दे हैव डिस्क्राइब्ड इनटू द थ्री क्लासेस, ठीक है, ड्यूरिंग द एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन। जो उनका कहना है कि इन जनरल जो लोगों का ओपिनियन था, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड मेनली अमंग द थ्री क्लासेस, दीज वर योर पैट्रिशियंस और द रिच, जो आपकी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास होती थी, है ना, एंड दीज पीपल लेड अ लग्जरियस लाइफ, एंड द सेकेंड क्लास बिलोंग टू द plebeians or the common people, ठीक है, and in this the people of like your traders, craftsmen, warriors, cultivators, all these people come into this category, and these people enjoyed all the civic rights, but they had to bear the burden of most of the taxes, okay, and for the purpose they were against the upper classes because of the burden of the taxes. And the last category is the category of your slaves, ठीक है, and all of you know their condition was very bad, they were too much exploited and they were sold in the markets, ठीक है, okay, and too much of work was taken from these people, ठीक है, इन लोगों से बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, right children, okay. Now one writer of the early 5th century, okay, the historian Olympiodorus, ठीक है, and he was an ambassador also, tells us that the aristocracy was based in the city of Rome, drew annual income up to 4,000 pounds of gold from their estates, है ना, हमने बताया था ना कि these senators were very wealthy, है ना, तो उन्होंने कहा कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी ये बहुत ज्यादा वेल्दी थी, और इनकी एनुअल इनकम इफ वी काउंट इन गोल्ड, ठीक है, तो इट इज अप टू द 4,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, एंड यस चिल्ड्रन, पर इसमें वो चीजें इंक्लूड नहीं करते थे विच दे प्रोड्यूस
एंड कंज्यूम डायरेक्टली, ठीक है, जो उन लोगों ने अपने घर के लिए यूज कर लेते थे वो उसमें काउंट नहीं होती थी. द अमाउंट रिमेन्ड विद देम इज काउंटेड एज 4,000 pounds ऑफ गोल्ड एवरी ईयर. तो यू कैन काउंट एंड इमेजिन कि कितना बड़ा अमाउंट उनके पास इस तरीके से आ रहा था. राइट, क्लियर बेटा? यस चिल्ड्रन. Now, the monetary system of the late empire broke with the silver-based currencies of the first 3 centuries. ठीक है, आपका जो मॉनेटरी सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था उस समय? सिल्वर कॉइन्स वर देयर एंड दिस सिल्वर they were getting from the Spain, and these things were went nicely up to the first 3 centuries, but later on these Spanish silver mines were exhausted and there is no supply of silver. Then what to do? ठीक है, and the government ran out of the sufficient stock of the metal to support a stable coinage in the silver. ठीक है, अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो सिल्वर कॉइन्स के थ्रू अपने कॉमर्स एंड ट्रेड एंड उसके पूरे सर्कुलेशन को मेंटेन कर पाए. राइट, देन कॉन्स्टेंटाइन वन founded a new monetary system on gold. ठीक है, उन्होंने फिर एक इसका सब्स्टिट्यूट क्या फाइंड आउट करा कि दे आर गोइंग टू यूज gold in place of the this silver. ठीक है, and there were vast amount of this in circulation throughout the late antiquity. जो आपका लेट एम्पायर का पीरियड है उस पूरे पीरियड में आपका ये गोल्ड कॉइन्स ही सर्कुलेशन में रहे हैं, ये ही आपके यूज होते रहे. ओके, द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी जिसमें आपके हाई एंड मिडिल, ठीक है, बोथ लेवल के लोग आते थे, वॉज अ कंपेरेटिवली एफ्लुएंट ग्रुप. ठीक है, ये काफी रिच पीपल थे बिकॉज इट ऑल्सो ड्रू द बल्क ऑफ सैलरी इन गोल्ड and invested much of this in buying up assets like land. ठीक है, जो रोमन एडमिनिस्ट्रेशन या रोमन ब्यूरोक्रेसी के लोग थे जिसमें कि हायर एंड मिडिल है ना, दोनों लेवल के लोग आते हैं, दोनों हायर एंड मिडिल एक्लेंस दोनों आते हैं. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये लोग रिचर होते जा रहे थे, एफ्लुएंट होते जा रहे थे बिकॉज नाउ इंस्टेड ऑफ सिल्वर दे वर गेटिंग देयर सैलरी इन गोल्ड, और उसमें से ये बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे. Investing means to they are indirectly increasing their income. ठीक है, they were investing this money or this gold in buying up assets like land, जो कि उनको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देने वाले थे. There was of course also a great deal of corruption, but उन्होंने कहा है कि करप्शन भी उस समय आपका स्टार्ट हो गया था to a large extent and it was found in the जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, जैसे ब्राइब दे के कोई आपका कोर्ट केस है ना, केस चल रहा है, केस किसी ने फाइल किया है तो आप उसको पैसा दे के केस अपनी तरफ अपने फेवर में करा लो, लाइक दैट. ठीक है, द करप्शन वाज इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री सप्लाईज. ठीक है, मिलिट्री के लिए जो वेपन सप्लाई होते थे, फूड सप्लाईज होते थे, उन सब में भी आपका ये करप्शन देखा गया था. The extortion of the higher bureaucracy and the greed of the provincial governors were proverbial. ठीक है, ओके, कि चाहे आपका ये ब्यूरोक्रेसी क्लास थी है ना, और या प्रोविंशियल गवर्नेंस मींस आपकी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी. ओके, मींस जितने भी आपके हाई ऑफिशियल्स थे, गवर्नर्स थे, है ना, दीज पीपल बिकेम पॉपुलर कि हाँ ये लोग बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हैं. ओके, एंड द और मतलब एक दूसरे के बराबर ही समझे जाते थे. ठीक है, and
and people were criticizing them. And seeing all this corruption and all, the government interfered and repeatedly to curb these forms of corruption. ठीक है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करती रहती थी when these things came into their notice कि इसको खत्म करा जाए. We only know about them in the first place because of the laws that try to put an end to them. ठीक है, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए कि किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है. ओके. And because historians and the other members of the intelligentsia denounce such practices, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका इंटेलिजेंशिया था वो इन करप्शन की प्रैक्टिसेस को पसंद नहीं करता था. दे वर अपोजिंग दिस एंड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट मैनी लॉज वर मेड कि किस तरीके से इन चीजों को टोटली खत्म कर दिया जाए. दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज रिमार्केबल फीचर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो आपका क्रिटिसिज्म था ये वहाँ उस समय काफी कॉमन था. लोग बाग इस अपने गवर्नमेंट की, इन सब की, अपने किंग्स की क्रिटिसिज्म किया करते थे, है ना, उनको क्रिटिसाइज करते थे व्हेन दे डू नॉट फाइंड द थिंग्स गोइंग ऑन स्मूथली एंड दे इवन स्पोक अगेंस्ट द किंग. द रोमन स्टेट वाज एन अथॉरिटेरियन रिजीम. ठीक है, मीन्स जहां पर राजा अपनी मर्जी चला सकता है, अथॉरिटेरियन रिजीम थी, है ना. और इन द अदर वर्ड्स डिसेंट वाज रियरली टॉलरेटेड एंड गवर्नमेंट यूजुअली रिस्पॉन्डेड टू द प्रोटेस्ट विद वायलेंस. ठीक है, और जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग अपनी आवाज उठाते थे, दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम रिबेल और द प्रोटेस्ट, तो उनको दबा दिया जाता था, उनको सप्रेस कर दिया जाता था. Especially in the cities of the east where people were often fearless in making fun of the emperors. ठीक है, उनकी अगर पॉलिसीज अच्छी नहीं होती थी तो इवन वो किंग्स का फन भी करते थे, है ना. Yet a strong tradition of the Roman law had emerged in the 4th century. पर 4th century के आते आते तक, ठीक है, एक आपका बहुत अच्छे से लॉ बनाए जाने लगे थे. ओके. एंड दिस ये जो आपके डिफरेंट एक्ट सब बन रहे थे, डिफरेंट लॉज बन रहे थे, इसने इवन जो एम्परर्स हैं उनकी पावर्स को भी कंट्रोल कर दिया था. ठीक है, एंड दिस एक्टेड एज ए ब्रेक ऑन इवन द मोस्ट फियरसम एम्परर्स. एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक. ठीक है, अब एम्परर्स केवल अपनी मर्जी नहीं चला सकते थे. ओके, दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज लॉज. उनकी जो पावर्स हैं वो कम हो गई थी. ओके, एंड जो हमने बताया कि वो इस तरीके से अपना मन मर्जी चलाते थे, वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी कि किसी ने भी उनके अगेंस्ट आवाज उठाई तो उन सबको वो एकदम से सप्रेस कर देते थे, है ना. जहां भी उनको लगता था कि चाहे उनकी बात गलत है, अगर उसी के लिए भी जनता या सिटीजन्स अपनी वॉइस रेज वॉइस कर रहे हैं, दे वर रेजिंग देयर वॉइस. ठीक है, तो उनको इनकी यही रहता था कि कोई भी हमारे अगेंस्ट ना रहे, हमारे अगेंस्ट ना बोले, और वो उनको तुरंत अपनी आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ उन सब चीजों को सप्रेस कर दिया करते थे. बट नाउ these things were not possible like this after making these laws. Emperors was not free to do whatever they liked and the law was actively used to protect civil rights. ठीक है, और लोगों के सिविल राइट्स को भी इन लॉज के थ्रू प्रोटेक्शन मिल रहा था, और किंग की पावर्स को, किंग के ऊपर एक चेक लगा दिया गया था कि ऐसा नहीं कि जो वो चाहेगा वो अपनी मर्जी से कर सकता है, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट. ठीक है, if something is wrong then it is to be stopped then and there. And this is why the later 4th century, ठीक है, it was possible that these bishops became very much powerful. ठीक है, अगर किंग कुछ गड़बड़ कर रहा है तो बिशप्स वगैरह भी, जो आपके क्लर्जी के पीपल होते थे, वो उनको कंट्रोल करते थे. ओके, वो उनको रोकते थे इन गलत कामों को करने से. That is why in the later 4th century it was possible for the powerful bishops like Ambrose
टू कन्फ्रंट इक्वली पावरफुल एम्परर्स, ठीक है, जो बहुत पावरफुल एम्परर्स थे उनसे भी वो कन्फ्रंट कर लेते थे, उनसे भी वो कहते थे कि यस यू आर रॉन्ग, when they were excessively harsh or repressive in their handling of the civilian population, ठीक है, जब वो कॉमन पीपल को गलत तरीके से हैंडल करते थे, if common people are raising their voice for the right things, for the policies, wrong policies imposed by the government, ठीक है, imposed by the king, तो ये आपके बिशप्स लाइक एम्ब्रोज वो सिविलियन पॉपुलेशन को फेवर करते थे, उनको सपोर्ट करते थे और किंग के साथ कन्फ्रंट करते थे कि हाँ आप जो ये पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट करी हुई है, दीज पॉलिसीज आर नॉट करेक्ट एंड दीज आर टू बी चेंज्ड, ठीक है, ये लोगों के फेवर में नहीं है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, और उनको वो सब पॉलिसीज फिर चेंज करनी पड़ती थी, राइट चिल्ड्रन? Ma'am, I have a question. हाँ हाँ, यस यस यशिका. Ma'am, was slave labor not considered a uh, I did not get the question, beta. Just repeat. ma'am, Hmm. slave labor was not considered a civil right? Slave labor, huh? Yes, ma'am. They do not have the civil rights, beta. Okay. And Yes, ma'am. later on ये जो आपका स्लेव प्रैक्टिसेस है ये भी आपकी खत्म होती चली गई थी, ठीक है, ये हम बहुत लेटर पीरियड की बात कर रहे हैं, when these acts came. Okay. Late antiquity, that is from the 4th to 7th century. Late empire का जो हमने बताया था ना कि it was divided into the two periods, late empire and the early empire. Early empire was up to the 3rd century. 3rd century. Okay, and after that from the 4th century onwards it started with the late antiquity or the late empire, you can say like this. Okay, any other problem, any other queries, children? Yes children, now we are going to move to the next heading, that is your late antiquity. Okay, we shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of the Roman world in its final centuries. Late antiquity is the term now used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of the Roman Empire, refers broadly to the 4th to the 7th centuries. ठीक है, जो आपका लेट एंटिक्विटी का पीरियड है, इन दिस देयर इज अ टू मच ग्रोथ ऑफ द एम्पायर, ठीक है, इकोनॉमिकली इट ग्रोज, ठीक है, if we see the architecture construction of the building in that way also it grew, ठीक है, it grew a lot, ठीक है, right children? And the 4th century itself was one considerable ferment, both cultural and economic, ठीक है, इसी समय पर आपके कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस आते हैं. When we'll see at the cultural level, the period saw momentous development in the religious life, with the emperor Constantine deciding to make Christianity the official religion, ठीक है, उससे पहले तक वहां पर बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है ना, ठीक है, पॉलिथिस्ट थे पीपल, बिलीविंग इन द डिफरेंट फेथ्स, बिलीविंग इन द डिफरेंट गॉड्स, ठीक है, हमने जहाँ पर दिस उसके बारे में भी पढ़ा था ना कि वहाँ पर डिफरेंट गॉड्स होते थे, हर कोई अपना किसी उसको मानता था, पर कॉन्स्टेंटाइन ने आकर के क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था. एंड आफ्टर दैट
why he did? Because at the same time there was the rise of Islam in the 7th century. ओके, और उसके बाद दिस क्रिश्चियनिटी एंड दिस इस्लाम, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे वॉर्स भी होते हैं. दे वर नोन एज क्रूसेड्स, ठीक है, रिलीजियस वॉर्स होते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम वांट टू मेंटेन देयर होल्ड. ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्रिश्चियनिटी वॉज imposed as a official religion into the Roman Empire by the King Constantine. और इसी पीरियड में हम इसके डिक्लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, हाउ दिस रोमन एम्पायर वाज डिक्लाइंड. बट देयर वर इक्वली important changes in the structure of the state that began with the Emperor Diocletian, who ruled from 284 to 305. Excuse me. And it may be best to start with these. ठीक है, उनके समय में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. व्हाट आर दीज चेंजेस? Over expansion had led Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic or economic value. ठीक है, the empire was too much expanded कि it was becoming difficult to control it, है ना. तो उन्होंने क्या करा कि कुछ टेरिटरीज जिनका कि उनको लगता था कि these do not have any economic importance to them, ठीक है, उनके लिए जो उनके लिए फाइनेंशियली कोई गेन्स नहीं दे रही थी. राइट चिल्ड्रन? ओके, उन्होंने उन सब चीजों को वहां से छोड़ करके उनको हटा दिया और अपने एम्पायर को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया. डायक्लोटियन ऑल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, जो उनके फ्रंटियर्स थे दे वर फोर्टिफाइड. ओके, कि अगर कोई दूसरा लोग उनको अटैक करते हैं उनके ऊपर तो दे विल बी चेक देन एंड देयर. देन रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और जो उनके प्रोविंसेस की बाउंड्रीज थी उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा. जैसे हमने बताया कि उन्होंने कुछ टेरिटरीज को कट बैक कर दिया था. एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस. ओके, और मिलिट्री के फंक्शंस अलग बता दिए कि दीज आर द फंक्शंस ऑफ द आर्मी, और उनको कॉमन पीपल से बिल्कुल अलग कर दिया, सिविलियन से बिल्कुल अलग कर दिया. ठीक है, नाउ देयर इज नो इंटरमिक्स ऑफ द सिविलियन पीपल एंड द आर्मी पीपल. दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट वर्क्स टू डू. और पहले देन ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे, है ना, उनको काफी फ्रीडम मिल गई कि इफ दे फाउंड एनीथिंग रॉन्ग तो समटाइम्स इवन दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस व्हाट दे हैव टू डू इन सच अ सिचुएशन. हु नाउ बिकेम ए मोर पावरफुल ग्रुप, और इस तरीके से जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो एक पावरफुल ग्रुप बन गया था. जैसे हमने बताया था ना कि जो आपके रिच एलीट से, दो दे आर गुड इन वेल्थ, है ना, वो उनसे वेल्दी थे, बट इफ यू सी द पावर, तो जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मिलिट्री ग्रुप है, मिलिट्री पीपल हैं, उनकी पावर उन रिच एंड वेल्दी पीपल से ज्यादा थी. ओके, कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेटेड सम ऑफ द चेंजेस. ठीक है, उन्होंने ये सब जो चेंजेस किए, राइट चिल्ड्रन, उन सबको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया. ओके, उन सबको उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया कि ये सब चीजें जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, है ना, वो अच्छे से चलती रहें. ठीक है, उन्होंने सब चीजों को और मजबूती से इम्प्लीमेंट किया. एंड सम ऑफ एंड एडेड अदर्स ऑफ हिज ओन, और उसके अलावा और भी चीजें उसमें उन्होंने ऐड करी. ठीक है, जो कॉन्स्टेंटाइन के समय पर, ठीक है, कुछ चेंजेस करे गए थे, एंड विच ही फील्स दैट दीज चेंजेस आर ओके. तो डायक्लेटियन ने उन चेंजेस को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, उन सबको फॉलो करा, अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करा. और इसके अलावा he made some other changes also in his empire.
and his chief innovations were in the monetary sphere. कुछ चेंजेस उन्होंने आपके इकोनॉमिक फील्ड में किए, where he introduced a new denomination, the solidus, a coin of 4.5 ग्राम of pure gold. ठीक है, और उन्होंने एक नया कॉइन गोल्ड का इंट्रोड्यूस करा जिसको कि सॉलिडस बोला जाता था, और ये कॉइन जो है प्योर गोल्ड का बना हुआ था, 4.5 ग्राम का होता था. हमारे यहाँ पर बताया आप लोग को कितने का होता है जो गोल्ड कॉइन होता है, कितने ग्राम्स का होता है? इंडियन गोल्ड कॉइन होता है ना, कितने ग्राम्स का होता है वो? हम्म 1 gram. नो बेटा, इट इज ऑफ 10 ग्राम्स. ठीक है, जो गोल्ड कॉइन हम जैसे खरीदते हैं ना बाजार से, तो 1 तोला बोलते हैं उसको हम, है ना, 1 तोले का होता है, और इट कंटेन्स 10 ग्राम्स इनटू इट. और इससे पहले तक जो पुराने समय पर, आप बहुत पुराने समय पर जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उनका वेट 12 ग्राम्स होता था. ओके, और इनके ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं, इवन आफ्टर द रोमन एम्पायर खत्म हो गया था उसके बाद भी प्रैक्टिस में रहे थे. ओके, solidi were minted on a very large scale and their circulation ran into millions. और ये गोल्ड कॉइन्स अब काफी लार्ज स्केल पर बनाए जाने लगे थे. ठीक है, for all the trade and commerce these coins were used, so we can say they were in a great circulation. ऐसा नहीं था कि लोग वो गोल्ड कॉइन्स को अपने पास इकट्ठा करके रख रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं. These coins were used for the purpose of trade and commerce. The other areas of innovation was the creation of a second capital at Constantinople. ठीक है, और दूसरी जो उन्होंने अपना कैपिटल को चेंज कर दिया था, राइट. अब उन्होंने अपनी कैपिटल, एक दूसरी कैपिटल और बना ली थी, and it is known as Constantinople. and ये आपका जो प्रेजेंट डे की साइट ऑफ द मॉडर्न इस्तांबुल इन टर्की है, एंड इसको पहले बाइजेंटियम भी बोला जाता था. एंड व्हाई ही चोज दिस प्लेस? बिकॉज दिस प्लेस वाज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द सी. ठीक है, और ऐसे में उनके ऊपर जो दूसरे कंट्री के अटैक्स होते हैं उनके कैपिटल सिटी के ऊपर, वो कम हो जाते हैं क्योंकि तीनों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है, एंड वन साइड इट बिलोंग्स टू इट्स एम्पायर. ठीक है बेटा, और जब आपकी नई कैपिटल बनी एक और, तो उनको नए सीनेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, वहां पर काम करने के लिए, और ऑफिशियल क्लास की और एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जरूरत पड़ेगी, राइट चिल्ड्रन. तो synods were required, and the 4th century was a period of rapid expansion of the governing classes. और बहुत सारे गवर्निंग ऑफिशियल्स को भी इस न्यू कैपिटल सिटी की वजह से अपॉइंट करा गया. ओके, अब क्या हो जाता है, हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल वी कैन कंक्लूड कि देयर वाज ए मॉनेटरी स्टेबिलिटी. फाइनेंशियली अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक तरीके के कॉइन उनके यहाँ पर चले जा रहे थे, एंड जो पॉपुलेशन है वो उनकी एक्सपैंड कर रही थी, और ये जो एक्सपेंडेड पॉपुलेशन है ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प कर रही थी. एंड the archaeological record shows considerable investment in the rural establishment. ओके, और जो आपके रूरल इस्टेब्लिशमेंट थे, है ना, उसमें भी बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा था. ये नहीं था कि जो मेन आपके कैपिटल सिटीज हैं या बिग सिटीज हैं वहीं उन्हीं चीजों को ग्रो करा जा रहा है. इवन यू कैन से देयर वाज ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज आल्सो. ठीक है, एंड इन रूरल एरियाज दे वर making industries. There was installation of industries like oil presses, mainly जो आपके उससे
एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यू कैन से, और इसके अलावा ग्लास फैक्ट्रीज वहां पर खोली जा रही थी. In newer technologies such as screw presses, multiple water mills, and a revival of a long distance trade with the East. Okay? मीन्स ऐसा नहीं था खाली कि जैसे नॉर्मली क्या होता है हम लोग सिटी के ऊपर सिटी की ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया जाता है, बट एट दैट टाइम रूरल एरियाज वर ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, और वहां पर नई नई इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करे जा रहे थे. सम ऑफ देम आर एग्रो बेस्ड लाइक योर ऑयल प्रेसेस, और इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज वहां पर लाई जा रही थी. ठीक है, और उसके थ्रू वाटर मिल्स है ना बनाई जा रही थी. आपको पता है ना कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें हमारा खर्चा कुछ नहीं हो रहा है, वाटर रिसोर्स जो है ना, और आपको कुछ उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है. ओनली वंस यू सेट द टेक्नोलॉजी, तो इनिशियल इंस्टॉल आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बट लेटर ऑन इट वर्क्स विद द वाटर. एंड जैसे आपका वो आटा पीसने की चक्की वगैरह जो होती है ना, ये आपकी विंड मिल से वाटर मिल्स जो होती थी ये हेल्प करती थी. एंड इन द रिवाइवल ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट, और दोबारा से उनका ट्रेड ईस्टर्न पीपल के साथ स्टार्ट हो गया था, ईस्ट के साथ स्टार्ट हो गया था. राइट चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पार्ट? Yes, ma'am. हाँ पूछिए बेटा. Ma'am, each territory of the Roman Empire had its own importance, हम्म economic value, and strategic हम्म importance. हम्म Rural areas of Roman Empire also had these importances. हम्म Ma'am, can we say that he was trying to expand these economic values? यस एब्सोल्युटली राइट. आपका इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर ही रहे हैं ना वो बेटा, है ना. और टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो उस समय थी, नई नई टेक्नोलॉजीज ला करके है ना विलेजेस को और पूरे ईस्टर्न एरिया को अपना वो ग्रो कर रहे थे. राइट? Yes, ma'am. ओके. All of this carried over into strong urban prosperity that was marked by new forms of architecture and exaggerated a sense of luxury. ठीक है, और इस तरीके से जो आपके इवन अर्बन सेंटर्स थे है ना, जब हमारा रूरल एरिया ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं दे विल आल्सो बिकम प्रॉस्पेरस, और एक नई तरह का आर्किटेक्चर वो अपना इम्प्लीमेंट कर रहे थे. और जो आपका लग्जरी है दे वर ऑल्सो एग्जैगरेटिंग, वो भी आपका बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच में आ रही थी. जब हमारे पास पैसा होता है ना, तभी हम लग्जरी की तरफ जाते हैं. जब हमारे पास कम कैश पैसा होता है तो व्हाट वी यूज टू डू, वी सिंपली फुलफिल फर्स्ट आवर बेसिक नीड्स, है ना. जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होने लगती हैं अच्छे से और उसके पास हमारे पास सरप्लस मनी होता है, देन वी गो फॉर द कंफर्ट्स एंड द लग्जरी. ठीक है, जो पीपल हैं एक लग्जरियस लाइफ अपना लीड कर रहे थे. द रूलिंग एलिट्स वर वेल्दियर एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर. ठीक है, जो रूलिंग एलिट्स हैं वो भी, उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा हो गया था, और इससे पहले जितने वो कभी पावरफुल रहे थे उससे ज्यादा पावरफुल वो लोग हो गए. राइट चिल्ड्रन? दिस इज ऑल फॉर टुडे. एंड चिल्ड्रन, डेली वी आर गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस. ठीक है, और मैं आपका इसका क्लिक ले लेती हूँ फोटो के कितने लोग प्रेजेंट हैं, और लास्ट में भी आई एम गोइंग टू टेक अ क्लिक ऑफ दिस. ठीक है, सो दैट आई विल कम टू नो कि हु हैज लेफ्ट इन बिटवीन. इफ यू आर ज्वाइनिंग, ठीक है चिल्ड्रन, देन कीप joining at the end. Right, today I'm going to display your this test marks. ठीक है, as well as I'll give you the right answers also, so you will come to know automatically. And children, leave this practice in future कि एक बच्चा कई कई नाम से पेपर सबमिट कर रहा है, and one of the child has submitted with the name of Alka Sharma also. Is there any child Alka Sharma in your class? I never saw this name. Yes children?
Yes, class. Beta, stop these मैम things. Now you are quite grown up. Behave like a grown up children. ठीक है, ये सब चीजें धीरे धीरे कम करते जाइए. Okay, and behave like a mature person. Okay, hope you will not repeat these things in future. I'll take the list of the students from your class teacher and then confirm. और जिन बच्चों ने अपने नेम्स नहीं लिखे हैं XYZ सम नंबर्स के साथ पेपर सबमिट किया है, दे विल नॉट गेट द मार्क्स. मैं तो आपको भेज दूंगी लिस्ट में उनके आगे लिख के, बट आई डोंट नो हु दैट चाइल्ड इज. और बहुत लंबे समय से मैं ये कहती आ रही हूँ कि यू ज्वाइन विद योर नेम्स. ओके, जस्ट check these things. Okay, and have a nice day and be blessed, children. Stay safe. Okay. Yes beta, any problem? No, ma'am. Okay, bye children. Beta, yes beta, do you want to say anything?